बीजेपी कौमी मजलिस आमला का इजलास हैदराबाद में 18 साल बाद कल से शुरू होने जा रहा है। इजलास में मुल्क भर से बीजेपी ईसी मेंबर्स हैदराबाद पहुंच रहे हैं। इस मीटिंग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, बीजेपी इक़्तिदार वाली रियासतों के उज़्रा आला, अवामी नुमाइंदे शिरकत करेंगे। इजलास के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सड़कों पर बीजेपी पर परचम लगाए गए हैं। HICC में बीजेपी की मीटिंग होगी। सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। 3 जुलाई को सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर रैली मुनक्किद की जाएगी। वाजरे के साल 2004 में उस वक्त के वजीर आजम अटल बिहारी की मौजूदगी में हैदराबाद में बीजेपी मजलिस आमला का इजलास मुनक्किद किया गया था। 2004 के बाद बीजेपी इक़्तिदार से महरूम हो गई थी। Exactly after 18 years, the National Executive Committee, after being held in Hyderabad, so many Prabandhaks who have already visited from the state and from different parts of the country, also national leaders, the chief ministers and other leaders are visiting 119 constituencies, wherein the massive public rally, which is supposed to be held on 3rd of July at the parade grounds. So we are expecting lakhs of crowd, and everyone is excited, right from Karyakarta till the national level leader. And the national party also has given a lot of importance to the Bharatiya Janata Party Telangana, because Telangana is the major source of the development which has benefited from Narendra Modi's government. This is the gateway for the South India. With this national executive meeting and after the public rally, definitely there will be a lot of dent for the TRS and for the Congress party, and yes, we are all excited. This happens to be the major meet on that. The success of the NEC meet in Hyderabad, which will starting from today. Importance, we are very confident that we are going to have a good meet where people of Telangana definitely will be influenced by the Bharatiya Janata Party massive rally as well as national executive meet. This will be an influencer day when all the 3 days, where the people of Telangana definitely will be turning in favor of the Bharatiya Janata Party. साबिक MP कोंडा विश्वेश्वर राव बीजेपी में शामिल होंगे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि तेलंगाना में खानदानी हुक्मरानी से अवाम परेशान है। कांग्रेस कमजोर हो चुकी है। बीजेपी ही तेलंगाना राष्ट्र समिति से मुकाबला कर सकती है। And made KCR the CM, has left and is working against him. And everybody who are working against Telangana are the few guys with him now. And we never imagined that there will be a family rule. And we are now fighting to restore democracy in Telangana and remove family rule. It is BJP that will displace the family rule in Telangana and restore democracy in Telangana. Given my word that I will join. And I left the joining itself to them. I prefer to join after, let's say, 2 or 3 weeks. I said, no, this is the best time to join, and it is used. It will help not only you, it will also help us. So they are pushing me to join. So I left it to them. So it's not going to be tomorrow. It may be day after tomorrow. वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे हैदराबाद से पहले TRS ने बीजेपी की खुशियों को फीका कर दिया। बीजेपी के 5 अवामी नुमाइंदे TRS में शामिल हो गए। TRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने बीजेपी लीडरों का इस्तकबाल किया। बीजेपी एक तरफ कौमी आमला के जरिए तेलंगाना में कदम जमाने की कोशिश कर रही है। GHMC कॉरपोरेटर्स का पार्टी को छोड़ देना बीजेपी के लिए सियासी धक्का तस्वुर किया जा रहा है। जुबली हिल्स, हस्तिनापुरम, राजेंद्र नगर और एकेडमिक के कॉरपोरेटर्स TRS में शामिल हो गए, जबकि तांडोर म्यूनिसिपल फ्लोर लीडर और काउंसलर ने भी बीजेपी छोड़कर TRS में शामिल हो गए। KTR ने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मोदी हुकूमत ने इंतखाबी वादों को पूरा नहीं किया, इसलिए अब बाय बाय मोदी कहने का वक्त आ गया है। కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మొత్తం దాసిండ్రు అక్కడ నల్లధనం మొత్తం గుంజుకొచ్చి దేశమంతా వంచుతా ప్రతి పేదవాడికి ఏమన్నాడు 15 లక్షలు। आप सभी लोग भाइयों जन धन खाता खोलो, मैं धन 15 लाख देता हूं అన్నాడా లేదా? పడ్డాయా 15 लाख? మరి ఏమనాలి మనం? అందుకే
ఏమనాలి? బాయ్ బాయ్ మోడీ. ఎక్కడన్నా నల్లదనం అంటే ఇప్పుడు తెల్ల ముఖం ఎత్తాడే, మాకు తెలియదు మాకు తెలియదు. గట్టిగా అడిగినాం అనుకో, ఏమైనా చారి అన్నాం అనుకో, ఏ అక్బర్, బాబర్, బిన్ లాడెన్, హిందుస్థాన్, పాకిస్తాన్. ఏమరా నాయన అంటే గదెల్లు తప్ప ఇంకోటి రాదు. ఇంకేం నరికిండు అన్నాడు, ఎన్నెన్ని మాటలు చెప్పిండు. 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తా అన్నాడు సంవత్సరానికి, యువతకి 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తా అన్నాడు. ఏం చేసిండు మరి? तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने प्रगति भवन में पार्टी के हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले अवामी नुमाइंदों का इजलास मुनक्किद किया। बताया जा रहा है कि ओपोजिशन के मुश्तरका सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 2 जुलाई को हैदराबाद का दौरा कर रहे हैं। उनके दौरे के इंतजामात के सिलसिले में इस इजलास में तफसीली तौर पर तबादले ख्याल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गुस्ताखे रसूल नुपुर शर्मा को फटकार लगाई और तमाम केसों को एक जगह करने वाली अर्जी खारिज कर दी है। इस मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री कब तक खामोश रहेंगे, कब तक नुपुर शर्मा को बचाएंगे। ओवैसी ने नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की मांग की और कहा, कानून को अपना काम करने दीजिए। क्या देश के प्रधानमंत्री अब दोबारा उनको ये सब बातें सुननी पड़ रही हैं? अभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री? क्यों नहीं रिएक्ट करना चाह रहे? प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि सस्पेंशन पनिशमेंट नहीं है। हम प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि आप सिर्फ नुपुर शर्मा के प्रधानमंत्री नहीं है, आप देश के 133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है, जिसमें 20 करोड़ के करीब मुसलमान भी हैं। आपको यह भी देखना पड़ेगा क्या एनएसी उस पर बात करेगी? आपके एनएसी के मेंबर हैं, आप कहेंगे हमने सस्पेंड किया। किससे सस्पेंड किया आपने? आपने स्पोक्स पर्सन से सस्पेंड किया उनको, एनएसी के मेंबर आज भी है वो। फिर से हमारा डिमांड करते हैं कि वो नुपुर शर्मा को अरेस्ट करवाएं और उन पर जो आईपीसी सीआरपीसी का सेक्शन लगता है उसके मुताबिक कार्रवाई करें। कब तक बचाएंगी भाजपा? भाजपा बचा रही है नुपुर शर्मा को। आप नुपुर शर्मा को बचा रहे हैं, दूसरी तरफ जुबैर को गिरफ्तार कर रहे हैं। नुपुर शर्मा को अब बचा रहे हैं, दूसरी तरफ आप एक महिला के नाम पे घर है, उसके शौहर के नाम पे नोटिस देकर घर तोड़ देते हैं। क्यों कर रहे हैं सर? हम देश के प्रधानमंत्री से फिर से डिमांड कर रहे हैं कि फौरन, और खास तौर से आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, आप उसको सामने रखिए, उसको गिरफ्तार करवाइए, कानून को अपना काम करने दीजिए बस। साबिक कॉरपोरेटर और एमआईएम लीडर ख्वाजा बिलाल अहमद नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करके सजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुल्क के मौजूदा हालात के लिए नुपुर शर्मा और पुलिस जिम्मेदार है। हिंदुस्तानियों का ये मानना है कि जब जब हुकूमत फेल होती है तब कानूनी अदालतें हमारा इंसाफ करती है और हमारी यही सबसे बड़ी अदालत है और हमारा सबसे बड़ा यकीन यही है। नुपुर शर्मा को अगर पहले ही उसके बयान पर उसको गिरफ्तार किया जाता तो मैं समझता हूं कि तमाम चीज़ें जो है हिंदुस्तान के माहौल, सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा ऑर्डर, लेकिन उम्मीद ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर जारी करे कि फौरी उसको गिरफ्तार करे, उसके ऊपर मुदस्सिर का कत्ल का मुकदमा डाले, अनस का कत्ल का मुकदमा डाले, कि क्यों नहीं उस रिपोर्टर को भी इस केस में बुक किया जाए। तो मैं ये एक बात कहना चाहता हूं उन तमाम फिरका परस्त रिपोर्टर्स को जो हिंदुस्तान का माहौल खराब करने के लिए एक आबो हवा बनाते हैं, जो हिंदुस्तान का माहौल खराब करने के लिए ऐसे अनपार्लियामेंट्री क्वेश्चंस किए जाते हैं, उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसके ऊपर भी, इनके ऊपर भी जो है गिरफ्तारियां की जाए। और मैं समझता हूं साथ ही साथ दिल्ली पुलिस को भी एक नोटिस सुप्रीम कोर्ट जारी करना चाहिए था कि अब तक एफआईआर के बावजूद, अब तक आज 18-17 दिन हो चुके हैं, 17 दिन के एफआईआर के बावजूद भी नुपुर शर्मा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। तेलंगाना हुकूमत ने बैरून ममालिक आला तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए स्कॉलरशिप के लिए एलामिया जारी किया है। चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप साल 2022 जनवरी से जुलाई के दरमियान बैरून ममालिक यूनिवर्सिटीज में दाखिला हासिल करने वाले तलबा से दरख्वास्तें ऑनलाइन तलब की गई हैं। एलामिये में
ऑनलाइन दरख्वास्त के इदखाल की आखिरी तारीख 31 जुलाई मुकर्रर की गई है और ऑनलाइन दरख्वास्त के इदखाल के बाद हार्ड कॉपी के इदखाल के लिए 10 अगस्त तक की मोहलत फराहम की गई है। वाज़ेह रहे कि रियासती हुकूमत की जानिब से बैरून ममालिक यूनिवर्सिटीज़ में आला तालीम हासिल करने वाले तलबा को चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप के तहत 20 लाख रुपए की इमदाद फराहम की जा रही है और इस ओवरसीज स्कॉलरशिप से इस्तिफादा के अहल तमाम तलबा 31 जुलाई तक दरख्वास्त दाखिल करनी होगी। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अक़लियतों के लिए चलाई जाने वाली स्कीम के लिए दरख्वास्तों की ऑनलाइन असूली और हार्ड कॉपी ज़ेरॉक्स सर्टिफिकेट्स अपने अपने जिले के डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर्स के दफातर में जमा करवाने की सहूलत फराहम की गई है। तेलंगाना में टीचर अहलियती इम्तिहान के नताइज जारी कर दिए गए। टीईटी कन्वीनर राधा रेड्डी ने नताइज जारी किए। वाज़ेह रहे कि टीईटी गुज़िश्ता महीने 12 को मुनक़िद हुआ था। रियासत भर में तकरीबन 90% उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक हुए। उनमें बैरून से 3,18,506 यानी 90.62% और पेपर 2 में 2,51,070 यानी 90.35% उम्मीदवार इम्तिहान में हाजिर रहे। दोनों पेपर्स में कामयाबी हासिल करने वाले 50% से भी कम है। एसएससी साल 2022 के सालाना नताइज में एमएस स्कूल्स के तलबा ने शानदार मुजाहिरा किया। एमएस स्कूल्स के 11 तलबा ने 10 में से 10 जीपीए हासिल किए। एमएस एजुकेशन एकेडमी के मैनेजमेंट ने नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा और उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश की। तलबा की तहनीती तकरीब मुनक़िद की गई। 10वीं जमात के नताइज में एमएस स्कूल्स के तलबा की कामयाबी का तनासुब 95% रहा। अल्हम्दुलिल्लाह एमएस का जो रिजल्ट है इस साल 95% एंड अबव है, यानी ओवरऑल मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब 10th पास कर चुका हूँ 9.7 जीपीए से। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाह रहा हूँ। Because I got 10 on 10 marks. In future I would like to become an engineer. I scored 10 on 10 GPA. Alhamdulillah. It is a blessing from Allah Ta'ala, of course, and also because of the hard work of my parents, my teachers, and the entire education academy. Thank you. मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 10/10 GPA मिला। आपका स्टाफ टोटल हमारे पास इस साल 1018 बच्चे एग्जाम्स लिखे एसएससी के, जिसमें से 969 स्टूडेंट्स हैव पास द एग्जामिनेशन, जो 95% एंड अबव है। और इसमें से 11 बच्चे 10 on 10 लाए हैं और 28 बच्चे 9.8 मार्क्स लाए हैं और 38 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 9.7 एंड अबव। टोटल 9.7 एंड अबव के बच्चे जो है हमारे पास 77 है अल्हम्दुलिल्लाह। और 9 जीपीए के अबव 273 स्टूडेंट्स मार्क्स ला चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज़ वेरी गुड साइन। तो बहुत ही अच्छा रहा। इनके पेरेंट्स का भी कोऑपरेशन बहुत अच्छा रहा। बच्चे जब कामयाब होते हैं तो खास तौर पर उनकी मायों का रोल बहुत ज़्यादा होता है। माँ के साथ साथ वालिद का भी बहुत अहम रोल होता है, लेकिन मेजर रोल विल बी विद द मदर। काफ़ी मेहनत करती है माँ और उसके बाद बच्चों के ये रिजल्ट आते हैं। मरकजी हुकूमत ने कमर्शियल गैस सिलेंडर सार्फिन को खुशखबरी सुनाई है। हुकूमत ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 198 रुपयों की कमी की है। 19 किलो के सिलेंडर पर 198 रुपयों की कमी की है। अब कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2,219 रुपयों से 2,021 रुपये हो गई है। कीमतों में कमी के बाद हैदराबाद में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2,426 रुपयों से कम होकर 2,243 रुपये हो गई है। तेलंगाना के हनुमनकुंडा में बीजेपी और कांग्रेस कारकुनों के दरमियान तसादुम हो गया। कांग्रेस कारकुन अग्निपथ स्कीम के खिलाफ बीजेपी दफ्तर पर एहतजाज किया। इसी दौरान दोनों पार्टियों के कारकुन आपस में टकराए। पुलिस ने बीच बचाव किया।